yesterday we studied about metallic character, like how we can define a metal. A metal is defined as anything which gives away electron and it itself becomes a positive ion. It becomes a cation. Okay, so the ability of an element to become a cation is called as metallic characteristics. Okay, so this metallic characteristic depends upon two things. First, it depends upon the atomic size, and second, it depends upon the nuclear charge. Okay, अब कैसे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे. ठीक है, अभी हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि मेटल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल? मेटल मींस द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड become positive ion. So atom should lose electron very easily. Okay, अब अगर atomic size अगर बहुत बड़ा है, if the atomic size is very very big, then the electron जो outermost shell में है वो nucleus से बहुत दूर है. So the nucleus will not be able to attract it so मतलब बोलते ना powerfully, so that electron can be easily removed. तो आराम से वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो पॉजिटिव आयन कैटायन बन जाएगा. सो हेंस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल. So the greater the atomic size, the farther the outermost orbit, and thus the lesser the nuclear pull exerted on it. As a result, the electrons can be removed very easily from the valence shell, thus making the elements more metallic. तो atomic size जितना बड़ा उतना strong metal, atomic size जितना छोटा उतना weak metal. Okay. Then we are having nuclear charge. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है, हमने लास्ट उसमें देखा था कि जब प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो force of attraction will also go on increasing. If force of attraction is increasing, then the electron will not be so easily removed. Okay, हम लोग उसको आराम से निकाल नहीं सकते हैं, न्यूक्लियस उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है. अब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा तो पॉजिटिव आयन कैटायन नहीं बन पाएगा. Hence we can say that now that atom is behaving as a bad metal. Okay, तो metallic nature decreases. Okay, तो ये हो गया एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज. अभी हम ये देखेंगे. अच्छा, और also yeah, there is something also called as reducing agent. Okay, elements which lose electron to complete their octet, they are called as reducing agents. Okay, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर क्या हुआ था, ये जो सोडियम था इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है. नाउ इट इज 2,8. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे 2,8. सो ऑक्टेट इज कंप्लीट. सो देयरफॉर सोडियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सो मेटल्स आर इन जनरल good reducing agents. Okay, so now we'll study the characteristics that how along the group and along the period it changes. If we are moving down a group, अगर हम लोग ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, okay, so हम लोग we are moving down the periods, है ना. एक ग्रुप में जब नीचे जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो इज पीरियड 1, सेकंड रो इज पीरियड 2, थर्ड रो इज पीरियड 3. एज द नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीजेस द एटॉमिक शेल एटॉमिक साइज विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग. Okay, therefore the metallic nature also increases. क्यों? क्योंकि atomic size बहुत बढ़ गया. तो हमने यहाँ पे देखे थे, if atomic size increases, it's a strong metal. So as we are going down a group, the number of shells is going on increasing. So lithium में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम है 5 है, सीजियम में 6 है. तो atomic size is going on increasing. As atomic size is going on increasing, the electron can now be easily removed, and hence they are good metals. The metallic characteristic increases. So lithium is the strongest, lithium is the least metallic, and cesium is the most metallic. अच्छा, फ्रांसियम. फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव है, तो अपने को उसका प्रॉपर्टी पता नहीं. सीजियम के नीचे फ्रांसियम है. इनफैक्ट फ्रांसियम इज सच अ इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि अब तक हमें ये नहीं पता कि फ्रांसियम दिखता कैसा है. ठीक है, फ्रांसियम जब भी हमने आर्टिफिशियली बनाने का ट्राई किए हैं तो क्या हुआ कि फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव ना, तो इट गॉट ब्रोकन डाउन एंड इट फॉर्म्ड अदर एलिमेंट्स. रेडियोएक्टिविटी में क्या होता है कि एक बड़ा एलिमेंट ब्रेक होके छोटे छोटे एलिमेंट बन जाते हैं. तो कभी भी हमने फ्रांसियम को जब बनाया तो इमीडिएटली इट गॉट ब्रोकन डाउन. इट इज हाईली रेडियोएक्टिव और छोटे छोटे एलिमेंट्स में बन गया. सर, हाँ बोलो. सर फ्रांसियम को देखा नहीं है तो उसको पीरियोडिक टेबल में कैसे डाला? पीरियोडिक टेबल में उसको डाला है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रांसियम. वी नो दैट फ्रांसियम के पास इतने नंबर ऑफ शेल्स है और आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है. तो जितने नंबर ऑफ शेल्स है उतना पीरियड, और जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल वो ग्रुप नंबर. तो ऐसा करके हमें पता है कि फ्रांसियम को पीरियड में पूरे जो क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में ये जगह पे आना चाहिए. और फ्रांसियम का प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल टू सीजियम. ओके, अगर लेकिन हम फ्रांसियम को इतना जमा नहीं कर पाए, हमने फ्रांसियम को इतना हमने कलेक्ट नहीं कर पाए कि हम उसको फिजिकली स्टडी कर सके. ओके, सो नेक्स्ट दिस थिंग. अच्छा, अक्रॉस द पीरियड. सर, हाँ बोलो. सर फ्रांसियम अलग अलग चीजों को कंबाइन करके बना? नहीं, फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव. रेडियोएक्टिव चीज़ों के साथ हम रिएक्शन नहीं करते.
हम उसके साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन इज डिफरेंट देन केमिकल रिएक्शन। वो अलग अलग चीज़ों से नहीं बना, उसके ऊपर हम लोग बॉम्बार्डमेंट करते हैं, कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट। तो बाय दिस न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रेंसियम इज फॉर्म्ड, okay, not by normal chemical reaction. It's a highly complicated process, okay, or because it is highly complicated, very expensive also, so very few studies are going on around the world about francium. So even though francium is in our periodic table and francium का हमें पता है कि प्रॉपर्टी सीजियम जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्चुअल फ्रेंसियम का फोटो नहीं है, हमें पता नहीं कि वो कैसा दिखता है, ओके। फाइन, नाउ वी आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड मतलब हम लोग जा रहे हैं सोडियम MgAl सिलिकॉन P, हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। As we are moving from left to right in a particular period, then we are observing that the atomic number is increasing: 11, 12, 13, 14, 15. The electron in the outermost shell is going on increasing. Proton is also going on increasing. Hence, I can say that the nuclear charge also increases. और हमने यहाँ पे ऊपर देखे थे कि as the nuclear charge increases, it becomes difficult for the electron to be removed and hence metallic nature decreases. तो हम लोग जब ये जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसीलिए स्ट्रॉन्ग मेटल Na और Mg आता है लेफ्ट में, ठीक है। फिर ट्रांजिशन मेटल एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये सब, सिलिकॉन तो मेटलॉइड है, वो सब आता है बीच में। और ये सल्फर और क्लोरीन क्या हो गया, ये हो गया नॉन मेटल। और आर्गन क्या हो गया, वो तो नोबल गैस हो गया, वो तो रहने ही दो, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट में न्यूक्लियर चार्ज कम तो मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा, राइट में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक कम। सो दिस इज हाउ अलोंग अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड दिस थिंग चेंजेस, बिहेवियर ऑफ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, ओके, फाइन। अभी देखो यहाँ पे सेकंड पीरियड में भी दिया हुआ है। सेकंड पीरियड में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लिथियम एंड बेरिलियम दे आर मेटल्स, बीच में बोरॉन है, वो नॉन मेटल है। फिर राइट साइड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो है नॉन मेटल्स, ओके। और इन द थर्ड पीरियड क्योंकि सोडियम आता है एकदम लेफ्ट में, तो सोडियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। फिर जितना हम राइट में होते जाएंगे उतना मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ओके। याद रखो, तो मेटल को जब भी मैं मेटल बोलता हूँ ना, तुम वो डेफिनेशन मत रखो कि इट इज वेरी हार्ड और इट इज शाइनी एंड ऑल दैट, ओके। यहाँ पे हम मेटल का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटायन। इसके लिए भले एल्यूमिनियम हमें ऐसा लगे कि स्ट्रॉन्गर मेटल है सोडियम से, लेकिन उस डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो सोडियम इज अ स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन देन एल्यूमिनियम, क्योंकि सोडियम आराम से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देने का, वो भी दे देगा, एल्यूमिनियम भी मेटल है, वो भी दे देगा, लेकिन सोडियम और आराम से 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन वेरी इजीली, ओके। So whenever I say metallic and non-metallic characteristic, don't think about that Purana wala definition. Okay, it is very hard. It is conductor of electricity. This thing. Think about the new definition. New definition क्या है? Metal gives electron, becomes positive ion. Non-metal accepts electron, takes electron and becomes a negative ion. It becomes an anion. ठीक है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से अभी ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी सेम मैंने अभी डेफिनेशन बताया था, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कंसीडर्ड एज नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे क्लोरीन देखो, क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक और इलेक्ट्रॉन ई गेन करेगा, 288 बन गया, नाउ इट इज एन एनायन, वो नेगेटिव आयन है, ओके। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल। ऑक्सीजन 2 एटम को, 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ओके। तो सेम मैनर में नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, ओके। अभी एटॉमिक साइज कैसा, अब हमने पहले देखे थे, एज द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, ओके। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को देना नहीं है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को हमें एब्जॉर्ब करना है। टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज एब्जॉर्ब करेगा ना, तो अगर लास्ट शेल बहुत दूर चले जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज इतने दूर तक का नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। सो हेंस अगर एटम बहुत स्मॉल रहेगा, स्मॉलर द एटम द ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल, तो न्यूक्लियर वो फटाक से एब्जॉर्ब कर लेगा एंड हेंस इट इज नॉन मेटेलिक। लेकिन अगर एटम बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पुल कम रहेगा एंड इट विल नॉट बिहेव लाइक अ नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जो एटॉमिक साइज हमने पढ़े थे मेटल में कि एटॉमिक साइज बड़ा तो मेटल स्ट्रॉन्गर, नॉन मेटल में उल्टा है, एटॉमिक साइज बड़ा तो एटॉमिक साइज छोटा तो नॉन मेटल स्ट्रॉन्गर, ओके। और सेम वैसा ही न्यूक्लियर चार्ज, हमने वहां पे पहले देखे थे मेटल में कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इट्स अ वीक मेटल, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मेटल,
ओके, सो जो भी प्रॉपर्टी मेटल का है यहाँ पे उसका उल्टा प्रॉपर्टी है. द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज मोर नॉन मेटेलिक. Okay, fine. So we have to study the trend down a group as we go from top to down in a group. Like for example, consider group 14. Group 14 में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. Okay. Group 14 is actually 4a. और पीरियोडिक टेबल पे वहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा. ओके, यहाँ पे हम अगर स्टडी करेंगे तो क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन इज व्हाट? आई थिंक इट इज टिन, पीबी इज लेड, एसएन इज मे बी आई थिंक टिन, मेटल. ओके, तो हम ये देखते हैं कि ऊपर जब एज वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. क्यों इंक्रीजिंग? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग. ये फर्स्ट पीरियड है तो नहीं, ये फर्स्ट पीरियड नहीं, एक्चुअली ये सेकंड, कार्बन सेकंड पीरियड में होता है. सेकंड पीरियड में है तो 2 शेल, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल, जर्मेनियम फोर्थ पीरियड में है तो 4 शेल. तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग मतलब it is going towards the non-metal. The metallic characteristics are increasing. तो ऊपर नॉन मेटल है, बीच में मेटलॉइड है और नीचे स्ट्रॉन्ग मेटल्स है. तो लेड का एटम बहुत बड़ा है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो एक मेटल है. कार्बन का एटम छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज उसको पकड़ के रखेगा, तो इट्स अ नॉन मेटल. I hope you understood. As we go from top to down in a particular group, then we will observe that the atomic size goes on increasing. As the atomic size increases, the metallic character increases. So as we go down, it is metal, but up we are having non-metal. Fill left to right in a period. If I'm observing left to right in a particular period, then we have seen previously also that the what do you say, nuclear charge goes on increasing. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12, एल्यूमिनियम के पास 13. तो हम लोग जितना लेफ्ट टू राइट जाते हैं उतना अपना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. नाउ वी हैव स्टडीड एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस. तो ऑन द राइट हैंड साइड जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो नॉन मेटल है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग मेटल्स, और बीच में जो है वो हमारे पास मेटलॉइड है, जो आधा कैरेक्टरिस्टिक मेटल और आधा कैरेक्टरिस्टिक नॉन मेटल जैसा होता है उसका. ओके, फाइन. सो ये हो जाएगा अपना मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अभी देखो यहाँ पर कुछ कुछ हमने ये बताया कि द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो डिक्रीजिंग बेसिक नेचर. जैसे सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम एक नॉर्मल बेस बनाएगा. एम्फोटेरिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मींस नॉट इवन अ बेस, नॉट इवन एन एसिड, इट इज लाइंग समवेयर इन बिटवीन, न्यूट्रल है वो. ये थोड़ा सा एसिडिक है, ये एसिडिक है, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक. Okay, so as you go from left to right in a particular what do you say, period, the acidic characteristics increases. ठीक है, और as you go from top to down the basic nature of oxide increases. Okay, तो यहाँ पे बस सिर्फ वो acidic और basic के बारे में भी हमको extra information दिया है. Okay, so just remember from left to right in a period acidic characteristic increases, and from top to down in a group the basic characteristic increases. Okay, इसको याद करने का एक और तरीका है, मेटल्स मेक बेसिस, नॉन मेटल्स मेक्स एसिड. ये याद रखो, ठीक है. तो जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मेटल मिलेगा वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, और जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल मिलेगा वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा. मेटल बेस और नॉन मेटल एसिड. ठीक है, फाइन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्टिविटी. ओके, नाउ वी नो दैट द केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी. ओके, अगर वैलेंसी जितना रहता है उसके हिसाब से हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं. इफ द वैलेंसी इज लेस लाइक 1 2, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो आराम से रिएक्ट कर लेगा, रिएक्टिविटी विल बी वेरी वेरी हाई. इसके लिए हम देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे देने का है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो सोडियम एंड क्लोरीन बोथ ऑफ देम आर हाईली हाईली रिएक्टिव. ओके, सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि अगर तुम सोडियम को तुम अगर उठा के तुमने अगर वाटर में अगर फेंक दिए तो इट विल क्रिएट अ वेरी वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, a lot of heat will be produced. Same with chlorine. अगर तुम क्लोरीन को किसी रिएक्शन में ले रहे हो तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर तुम किसी ऐसी चीज की बात करो जिसकी वैलेंसी ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन और सिलिकॉन, ओके, वेयर वैलेंसी इज 4. सो इन दोस केसेस द केमिकल रिएक्टिविटी विल नॉट बी दैट मच हाई, मतलब इतना विगरसली, इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा. कार्बन इज रिएक्शन दैट हैपेंस इन आवर बॉडी, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्लोजन्स नहीं होते. ओके,
सो ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो हमारे पास एकदम एक्सट्रीम एंड्स में वी आर हैविंग द मोस्ट रिएक्टिव। मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और सल्फर का भी वैलेंसी है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ से थोड़ा रिएक्टिविटी कम होते जाता है। So on extreme ends, where the valency is less, reactivity is very high, and as we go towards the middle, the reactivity decreases. So hence in the third period, the least reactive is silicon. सिलिकॉन इतना अनरिएक्टिव है, इतना अनरिएक्टिव है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें 20 to 25% सिलिकॉन है। ठीक है, और मतलब इतना इजीली क्यों अवेलेबल है, क्योंकि सिलिकॉन दूसरे चीज़ों के साथ उसने रिएक्ट करके उसने अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए। आयरन ने फट से रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम ने फट से रिएक्ट किया किसी और मेटल के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ। तो ऑल ऑफ द डिफरेंट मेटल्स, ऑल ऑफ द डिफरेंट मटेरियल ऑन अवेलेबल ऑन अर्थ, they don't exist in pure form, they exist in some kind of mixed form, compound form, molecular form. Okay, but silicon, it is existing in pure form and also in abundance. 20 to 25% of our earth's crust is made up of silicon only, because it is least reactive. वो किसी और चीज से रिएक्ट करने का ट्राई नहीं करता। सिलिकॉन खुद के सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके एक क्रिस्टल बना देता है, वो उसमें ही वो सेटिस्फाइड है, बाकी किसी और एलिमेंट के साथ वो नहीं जाता। ओके, now down a group, as we go down a group, the tendency of losing electron increases. Why? Because shell बड़ा होते जा रहा है ना, अगर शेल बड़ा होते जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन आराम से वो लूज करते जाएगा वो। Since chemical reactivity in metal also depend upon the ability to lose electron, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग जितना नीचे जाएंगे उतना हमारा रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, so therefore the most reactive metal is at the bottom of group 1. Okay, the most reactive non-metal is at the top of the group 17. As the metallic characteristic increases, the non-metallic characteristic उसका opposite है। तो metal जब bottom में रहेगा तो non-metal top में रहेगा। तो सबसे strongest non-metal किधर है? फ्लोरीन, वो top में आता है। फ्लोरीन ऊपर आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एसिटाइन। ओके, दैट इज दैट पुराना वाला टॉपिक है, एबिलिटी ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, fine. So chemical reactivity का topic is now over. Now we'll study about the physical properties. Gradation in physical properties. Now what is the meaning of gradation? Gradation means changes. How does the physical property changes along a particular group or period? Okay. तो पहली बात, the melting and the boiling point of metals decreases. एक सेकंड, कहाँ गया वो, कहाँ चला गया? हाँ, the melting and the boiling point of metals decreases on going down the group. ठीक है, जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। ऐसा पता है क्यों है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है? वो बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, अगर सारे के सारे एटम एक दूसरे से एकदम अट्रैक्टेड नहीं है, अट्रैक्शन अगर कम है तो इजीली मेल्ट और बॉयल हो जाएगा वो। लेकिन अगर एटम बहुत छोटा है, अट्रैक्शन बहुत हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे द एटम्स विल बी गेटिंग स्टक टू ईच अदर। सो टू मेक द एटम्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, यू हैव टू अप्लाई अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। Hence the melting point and boiling point will also increase. So lithium जिसका एटम सबसे छोटा है, ओके, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 180 डिग्री और 1347 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम उससे कम, पोटेशियम उससे कम। सो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, सो and the melting point and the boiling point of non-metal, as you go from top to down, it increases, क्योंकि यहाँ पे वही the attraction का जो हिसाब है वो उल्टा काम कर रहा है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन का नेगेटिव में मेल्टिंग पॉइंट है, तो फ्लोरीन एग्जिस्ट ओनली इन गैशियस फॉर्म। अगर तुमको फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में लाने का है, तो तुम्हें -219.6 डिग्री पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्लोरीन सॉलिड ऑब्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज -219 इज अ वेरी 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 लो टेम्परेचर, इट्स नॉट इजी टू क्रिएट। ये कोई नॉर्मल हाउस होल्ड फ्रिज के अंदर तो बन ही नहीं सकता, ऊपर से कमर्शियल जो भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग जो फ्रीजिंग एजेंट्स है उसमें भी बनाना मुश्किल है। इनफैक्ट अगर लिक्विड फ्लोरीन ऑब्टेन करना है, लिक्विड फ्लोरीन इज एट -187 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। Hence fluorine we are able to see it in gaseous state, but it is very difficult to obtain fluorine in liquid and solid state. देन क्लोरीन का उससे थोड़ा कम, ब्रोमीन का उससे थोड़ा कम, एंड आयोडीन का तो हमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आयोडीन नेचुरली इज अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। अगर 113 डिग्री पे अगर मैं उसको हीट करूंगा तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, और 183 डिग्री पे इट विल बिकम अ गैस। ओके,
Now, across a period, if we move from left to right, the boiling point and the melting point goes on increasing. So on left, we are having 98, and on right, sulfur, we are having 115. Okay, density also goes on increasing. Okay, uh, as we go from down a group, the density increases. Okay, lithium सबसे ऊपर है, उसका डेंसिटी 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके नीचे सोडियम है, डेंसिटी इंक्रीजेस, पोटेशियम का इंक्रीज, रुबिडियम का इंक्रीज। तो डेंसिटी अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, density in both the cases, it will go on increasing as we move from left to right in a particular period, or as we move from top to down in a particular period, the density of an element will go on increasing. Okay, fine. तो यहाँ पे ये हो गया, these are the in text questions. Okay, now ionization potential. Okay, ionization potential, ये शायद तक पहले ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए होंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। एक बार तुम्हें वो समझ में आ जाएगा ना, फिर तुम ऑटोमेटिकली आगे का पार्ट तुम समझ जाओगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड कैसे चेंज होगा। Ionization potential is also called as ionization energy, and it is also called as ionization enthalpy. Okay, now what is the meaning of that? The energy required to remove an electron from the neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called as ionization potential, or ionization energy, or first ionization energy. ठीक है, तो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक एटम है। कौन सा एटम है? इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है। उस ऑक्सीजन के एटम को तुमने फ्री गैसियस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में तुमने ऑब्टेन किया। नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑक्सीजन एटम, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पे जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में? हम लोग जो एनर्जी स्पेंड करते हैं ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन यू आर रिमूविंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन, सो यू हैव टू अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगेन, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देन फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो इसके लिए सब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। ओके, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो मेटल होता है वो तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, है ना? हमने पहले देखे थे कि मेटल सोडियम जो है वो आराम से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो। तो hence we can say that metals have a very low ionization potential. वहां पे इतना एनर्जी अपने को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आराम से एक मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऑन द अदर हैंड लेट अस कंसीडर क्लोरीन। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो देगा नहीं। अगर हमें क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्लोरीन इज हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. So in general, I can say that metals have a low ionization potential and non-metals have a high ionization potential. Okay, I hope you understood. Okay, let me just give you a quick recap of what I just said. Ionization potential means the energy required to remove the electron from the outermost shell. Okay, generally metals give away the electron very easily. इसकी वजह से मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो है, आराम से दे देगा, इतना एनर्जी अपने को देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी मैंने हीट किया ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ओके, बट ऑन द अदर हैंड क्लोरीन, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत हीट करना पड़ेगा, बहुत अपने को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। Hence, non-metals have high ionization potential. Okay, so ionization potential depends upon two things: atomic size, nuclear charge. Okay, अभी I will not go into that much amount of detail because atomic size, nuclear charge कैसे affect होता है हमें बहुत बार मैं पहले बता चुका हूँ। एटॉमिक साइज देखो, अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, तो हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू सप्लाई अ वेरी ग्रेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि हम निकाल सकें। ओके, so greater the atomic size, and if the atomic size is very very big, then the force of attraction will be very very small and the electron can be easily removed, hence ionization potential will be less. ओके, एंड न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। हेंस इफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन द एटॉमिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके, रिमेंबर दैट। ओके,
Okay, so we're talking about a period, trends in ion energy as we move from left to right in a period. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है ना। राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल होता है। हमने देखे कि मेटल आराम से दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा कम, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा हाई। So lithium is having the least ionization potential 520. Then as we go from left to right, the ionization potential goes on increasing. And neon is what? Neon is a noble gas. हाँ, noble gas is completely stable. उसको किसी चीज से पड़ी नहीं है, ठीक है। वो किसी भी रिएक्शन में नहीं जाना चाहता, वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। He is basically having a complete stable state and he is completely unreactive. So to remove an electron from neon will be very difficult. You will have to apply very high amount of energy, that is 2080 kilojoules per mole. सेम हम देखते हैं थर्ड पीरियड में भी। थर्ड पीरियड में सोडियम का सबसे कम है, Na का 496, and as we go from left to right the ionization potential goes on increasing down a group. अभी देखो, जितना हम ग्रुप में डाउन होते जाएंगे उतना द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इफ द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज लेस, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाएगा, क्योंकि हम अभी आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ना, देन यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट केसेस। ओके, there is no need to be worried about these topics, new terms like electron affinity, ionization potential, metallic characteristic, non-metallic characteristic. Just understand the main definition, because after you understand it, then the entire topic becomes very easy. Okay, now electron affinity का मतलब क्या होता है? The amount of energy released while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron is called as electron affinity. Okay, अभी अभी हम कभी भी अगर कोई भी अगर एक एटम में हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, ये जनरली हर केमिकल एटम के साथ में होता है। किसी में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, किसी में लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, उस एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें क्या आइडिया मिलता है? व्हाई इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एन इंपॉर्टेंट टर्म? इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी वेरी हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने पे अगर वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर वो दे रहा है, रिलीज कर रहा है, then I will say that that particular atom attracts electron very easily. Affinity is a general English word, it means liking, so it means electron liking. तो अगर एक एटम है, अगर एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। सो गुड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बर्स like non metals are good electron absorbers, है ना। They have high electron affinity. Metals on the other hand, they are not electron absorbers, they are electron givers. They don't absorb but they give electron, so they will be having a very low electron affinity. समझ में आया? तो अभी तुम पिछला जो हमने मेटेलिक नॉन मेटेलिक जो पढ़े थे, तुम उसमें जाके लिंक कर सकते हो। जहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इज हाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। ओके, जहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इज हाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर। ओके फाइन, आई होप तुम्हारे मतलब ना तुम यू आर एबल टू लिंक एवरीथिंग अप। ओके, तो यूनिट क्या होता है? हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ईवी पर एटम। ओके, या फिर किलो जूल्स पर मोल हम लोग उसमें मेजर करते हैं। ओके, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल दिया है, क्लोरीन आराम से एब्जॉर्ब करके 349 किलो जूल्स ऑफ ये देगा, तो दैट इज वेरी हाई। 349 किलो जूल्स मतलब 3,49,000 जूल्स, तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्लोरीन इज नॉन मेटल, इट इज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, just one second, recording, yeah. So electron affinity. Now atomic size and nuclear charge. As the atomic size goes on increasing, the nucleus will find it very difficult to attract the electron from outside, because atomic size बहुत बड़ा है, nuclear अंदर छुप गया है। Okay, और atomic size बहुत छोटा है। The smaller the atomic size, the greater the electron affinity, because the nucleus can easily attract electron from nearby. ओके, एंड न्यूक्लियर चार्ज हमने देखे कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट विल बी इजीली एबल टू अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी वेरी वेरी हाई। नाउ वेरिएशन ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ फर्स्ट,
As we move, यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, as we move from left to right in a periodic table. Okay, so left side पे क्या हमारे पास metals है. Metals they don't absorb electron, in fact they give electron. Okay, तो यहाँ पे electron affinity will be very very less. Okay, बहुत ही less amount of energy देगा वो, और electron को basically absorb भी नहीं करेगा. And on the right hand side we are having non-metals. Non-metals can easily absorb electrons. Okay, so their electron affinity will be very very high. Okay, I hope you are understanding it. Metals bad electron affinity, non-metals good electron affinity, high electron affinity. Okay, now as we go from top to down in a particular group, then I can say that atomic size goes on increasing. If the atomic size increases, the nucleus will find it very difficult to attract electron from the surrounding. Okay, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सराउंडिंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो लिथियम का हाईएस्ट है -59.8, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम. ओके फाइन. So electronegativity is left, and then relation between atomic number and mass number, and then the chapter is almost over. Okay fine, let me just finish this also. Okay, चलो खत्म कर लेते हैं, दो ही टॉपिक बाकी है. It will take just like 10 minutes I guess. Okay, so let us study about the next phenomena, that is called as electronegativity. Now what is the electronegativity का मतलब? Okay, the tendency of an atom in a molecule to attract electrons is called as electronegativity. Okay, अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an atom absorbs electron. That energy is measured in electron volt and kilojoule per mole. Okay, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली एनर्जी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट्स अ टेंडेंसी, एनर्जी नहीं है वो, और उसका कुछ यूनिट नहीं है. इट्स अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, उसका सिर्फ हमें प्योर नंबर मिलता है. एक साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग करके, इन 1932 उसने क्या किया, उसने सारे एटम को स्टडी किया और करके देखा कि किसका अट्रैक्शन और का टेंडेंसी ज़्यादा है और किसका कम है, और ऐसा करके उसने फ्लोरीन को हाईएस्ट दिया 4.0 और सीजियम को लोएस्ट दिया 0.7. देयर इज नो यूनिट, दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज जस्ट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कि हाउ मच एन एटम इज एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अराउंड इट. And electron affinity means the energy released. Okay, keep that in mind. Electronegativity और electron affinity दोनों में confuse मत करना. Okay, so again we are having, as the atomic size the greater the atomic size, the lesser the electronegativity. Obviously because atomic size बहुत बड़ा है, तो न्यूक्लियस अंदर छुप गया है, वो इतना बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. As the nuclear charge increases, the electronegativity also increases. Why? Because there is now a very high amount of positive charge which can attract electron. Okay, across a period, अगर हम देखेंगे electronegativity increases from left to right. Metals they don't attract electron, in fact metals they donate electron, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है. इनफैक्ट मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोलते. ओके, और नॉन मेटल्स आराम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, सो देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी हाई. And as we go from top to down in a particular group, the atomic size goes on increasing. If the atomic size is going on increasing, then the electronegativity will also go on decreasing, क्योंकि न्यूक्लियस अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, you can just go through these notes, these are same this thing, electropositive बोला गया है, metal को वगैरह मैंने explain कर दिया हूँ. Let's go to the next topic, relation between atomic number mass number of light elements. Light elements मतलब elements having less than 40 atomic weight. ओके, क्योंकि 40 के ऊपर क्या होता है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव भी थोड़े थोड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे द इक्वेशन बिकम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है. वी आर नॉट स्टडिंग हाउ मास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट व्हाट डू यू से हायर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वी आर स्टडिंग फॉर द लाइट एलिमेंट्स. सो फर्स्ट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं. वी कैन मेक अ कैटायन एंड वी कैन ऑल्सो मेक एन एनायन. So hence electron keeps on fluctuating, so it's not a that much dependable method of definition. Proton को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते. Okay, in any chemical reaction the number of proton does not changes, hence the atomic number of an element is equal to the number of protons, which is also generally equal to the number of electron generally. Okay,
एंड नो टू एलिमेंट विल हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एक इसका जो होता है एक एलिमेंट का, जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो वो 14 का 14 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सिलिकॉन का एटॉमिक मास है 28, ठीक है, उसका मास है 28। ओके, मास नंबर का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर। ओके, फाइन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है, उसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने मास नंबर में प्रोटॉन लिए, न्यूट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन को नहीं लिए। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम, दे विल गेट द मास नंबर। ओके, सो जनरली फॉर लाइटर एलिमेंट्स what we can say is that the number of electron is equal to the number of proton. Okay, so let us consider beryllium. Beryllium का है atomic number 4। okay, और उसके पास अगर atomic mass 9 है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे? जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल मास में से तुम प्रोटॉन निकाल दो, तुमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉन इज 5। सो इफ एटॉमिक नंबर इज z, mass number is a, then the number of neutron is what? A minus z. Okay, and this is applicable to almost all the lower elements. Okay, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस हिसाब से। ओके, नाउ ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक, एलिमेंट्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, लिथियम में प्रोटॉन नंबर इज 3, बोरॉन में 5, फ्लोरीन में 9। दे हैव देयर मास नंबर ट्वाइस द एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो उसका मास नंबर क्या रहेगा? 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर प्लस 1, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में दोनों में प्रोटॉन नंबर तो ऑड है, 7 और 1, लेकिन 7 टू साइज 14, 14 प्लस 1 15 होता है, तो नाइट्रोजन का वेट तो 15 होना चाहिए ना। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस लॉ को फॉलो नहीं करते। सो इन जनरल, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑड, then the total mass number is 2z plus 1, and if the number of proton is even, जैसे यहाँ पे हीलियम में देखो 2 है, कार्बन में देखो 6 है, तो हम लोग उसको इंटू 2 करेंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। 2 2 इंटू 2 इज 4, 6 टू इज 12, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम एंड आर्गन, क्योंकि 4 टू 8 होता है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर है 9, और 18 टू 36 होता है, लेकिन आर्गन का मास नंबर है 40। सो इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इवन, then the mass number is 2 times the atomic number, except for beryllium and argon. And if the number of proton is odd, then the mass number is 2 times plus 1, except for nitrogen and hydrogen. Okay, ठीक है, फाइन। सो दे हैव गिवन द रिमेनिंग जो कंपैरिजन है, ये हम लोगों ने देखो ऊपर जो पूरा एक्सप्लेनेशन किए थे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन, पोटेंशियल वगैरह, ये सबको उन लोग ने एक समरी बना के दिए है। ओके, सो यू आर सपोज टू जस्ट गो थ्रू दैट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी। ओके, वीडियो में वापस पूरा लिंक डाल दूंगा यूट्यूब के अंदर, तुम वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, यू आर सपोज टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड यू आर सपोज टू गिव इट मी टुमारो। ओके, फाइन। So I'm ending the chapter explanation now.